Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your ABS class, student. Today date is 15 July 2021 and I am teaching you chapter number 5. And name of the chapter, Animals Around Us. So student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. ठीक है. So in the previous video, student, we are discussing how animal eats. So according to the eating habit of the animals are divided into three groups, or you can say three categories. That is herbivorous animals, plant eating animals are known as herbivorous animals. Next is the carnivorous animal. Flesh eating animals are known as carnivorous animal. And next category is the omnivorous animals which can eat both means plants also and flesh of the other animals also. So that are come in this category, omnivorous. And if we talk about human beings, student, then human beings also come in this category, that is omnivorous. Human beings also come in the category of omnivorous. They eat both plants and animals. So now we will, according to eating habits of the animals, student, see, few animals are herbivorous, some are carnivorous animals, and some are omnivorous. So due to different eating habit, they have different set of teeth in their mouth. Is it clear? So due to different eating habits, student, they have different sets of teeth in their mouth. For example, I discussed with you that the herbivorous animals, they have flat and broad मतलब चौड़ा, ठीक है. They have flat and broad front teeth. Okay, so they have, and the most important point is that the shape of the teeth depends upon the food, which type of food they are eating. So herbivorous animals have flat and broad teeth to bite the leaves को कट करने के लिए, ठीक है. उनके दांत बहुत शार्प नहीं होते हैं herbivorous animals के. As you know, they eat plant, grass, and you know that the leaves are and grass are very soft. Leaves और grass क्या है, soft होते हैं. तो that is the reason they have flat and broad teeth but don't have a sharp teeth. And they have strong back teeth to chew the food. chew मतलब चबा चबा के खाना. And when you talking about the cow, it is given, and did you know also, they don't have upper front teeth. upper के front teeth नहीं होते हैं. Okay, so in place of the upper front teeth, they have a thick pad of skin. Okay, so next thing after that, I explained you chewing the cud. What is this? See, animals like cow and buffalo, you will observe that they eat food very fast. Just one time they chew the food, and after that they swallow it. Is it clear? One time they chew the food and after that they swallow it. Okay, then after some time what happens, they bring their food back into the mouth and then they chew the food. आपने देखा होगा कभी भी काऊ है, बेफिलो है, ये एनिमल्स आपने ऑब्जर्व की होगी ये चीज़ कि
when there is a movement in our mouth, when we eat the food, जब हम भी फूड ईट करते हैं तो हमारे अपर जा जो है वो फिक्स हैं, ये लोअर वाले जा मूव करते हैं बेटा, ठीक है। जो अपर वाले जा हैं, जो अपर जा दैट इज फिक्स्ड, एंड लोअर जा में मूवमेंट होती है टू च्यू द फूड। सो लेकिन आप इन एनिमल्स को ऑब्जर्व करोगे, आपको लगेगा ये इस समय तो काऊ एंड बफलो दे आर ईटिंग, they are not eating food, then why all the time they moving their lower jaws, हर समय लोअर जा की मूवमेंट क्यों देखने को मिलती है? बिकॉज they eat the food, they chew the food once and swallow it, and then after some time they bring back that food into the mouth to chew that food, ठीक है। so this is known as chewing the cud. And after that student, I discuss teeth of some other herbivorous animals like rabbit, rat and squirrel. Okay, so they have very sharp front teeth, their front teeth is very sharp, okay, which with which they bite the food. उनके फ्रंट के टीथ होते हैं बेटा बहुत शार्प होते हैं, ठीक है, उसी से फूड को बाइट करते हैं, ठीक। और इन एनिमल्स को ग्ने एनिमल्स बोला गया है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्ने? ग्ने मीन्स टू कीप बाइटिंग समथिंग, टू ईट स्लोली, ये अपना खाना बहुत स्लो खाते हैं, ठीक है, ये बहुत स्लो ईट करते हैं अपने खाने को। सो टू कीप बाइटिंग समथिंग, टू ईट स्लोली, दैट इज नोन एज ग्ने। Now today video we will talk about the carnivorous animals, which type of teeth these animals have. So carnivorous has student very strong teeth, okay, so we will discuss about carnivorous. So carnivorous have very sharp, ठीक है, शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ होते हैं उनके, ठीक है। कार्निवोरस है वेरी शार्प पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू टेयर द फ्लैश, ओके। देयर बैक टीथ आर ब्रॉड एंड फ्लैट एंड देयर जॉ इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं बेटा, उनके टीथ जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं एंड पॉइंटेड होते हैं, टू टेयर द फ्लैश, उन्हें फ्लैश को चीर के खाना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप लोग, हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वी डोंट ईट द फ्लैश रॉ, हम कच्चा मांस नहीं खाते, ठीक है। आपके घर में आपकी मम्मी लोग उसे कुक करते हैं, कुक करने से वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। कुक करने से वो सॉफ्ट हो जाता है एंड इट बिकम टेस्टी आल्सो एंड इट इजली डाइजेस्ट आल्सो इन आवर बॉडी। बट एनिमल्स हैं, दे डोंट नो कुकिंग, so when they kill the animal, then they eat flesh of the animals. तो how they are eating? so वो क्या है? रॉ फ्लैश ईट कर रहे हैं, मतलब कच्चा ही खा रहे हैं उसको। वो तो एनिमल्स हैं, दे डोंट नो हाउ टू डू कुकिंग। तो अब वो आपने कभी ऑब्जर्व करना, अगर आपके घर में फ्लैश आता है तो आप उसको, उस फ्लैश को होल्ड करना एंड यू ट्राई टू ब्रेक दैट, ठीक है। उस फ्लैश को आप तोड़ने की कोशिश करना अपने हैंड से, ठीक है। इट इज़ वेरी हार्ड, वो बहुत हार्ड होता है, ठीक है। सो आप लोग सोचो, जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं वो रॉ फ्लैश खाते हैं, मतलब कच्चा मीट खाते हैं, तो इसलिए उनके जो टीथ होंगे वो बहुत स्ट्रांग होंगे, ठीक है। दैट इज द रीजन उनके फ्रंट टीथ क्या होते हैं? बहुत शार्प होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। पॉइंटेड होंगे तभी तो वो फ्लैश को टीयर कर सकेंगे। इज इट क्लियर? उनके
एक तो शार्प होते हैं टीथ और एक पॉइंटेड होते हैं, जिससे कि वो फ्लैश को टेयर कर सकें, चीर सकें, ठीक है, जो फ्लैश है उसके टुकड़े कर सकें छोटे छोटे, ठीक है। तो दैट इज द रीजन, और दिस टाइप्स ऑफ टीथ द कार्निवोरस एनिमल्स हैव। You can write carnivorous, they have very sharp, they have very sharp front, very sharp pointed, they have very sharp pointed front teeth. Is it clear? They have very sharp pointed front teeth. And what is the role? To tear the flesh, to tear the okay. So carnivorous animal, they have very sharp pointed front teeth to tear the flesh, ठीक है। नेक्स्ट है their back teeth are broad and flat, their back teeth are broad and flat, okay. Their jaw is very strong, jaw मतलब जो जबड़े होते हैं, ठीक है, उनके jaw जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। Their jaw is very strong, so अब देखो, ठीक है। सो देयर बैक टीथ, देयर बैक ओके, देयर बैक टीथ ओके, आई रब इट एंड राइट इट अगेन। Their back teeth are broad and flat, सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कार्निवोरस के टीथ क्या होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, फ्रंट टीथ और पॉइंटेड होते हैं टू टीयर द फ्लैश, और उनके जो बैक के टीथ होते हैं वो चौड़े होते हैं, ब्रॉड एंड फ्लैट होते हैं, और देयर जा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, जा जो जबड़ा होता है वो स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा, बिकॉज दे आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। आप हम ह्यूमन बींग्स कुक करके खाते हैं, इसलिए फ्लैश क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। कुक करने से जो इतनी हार्ड बोन्स होती हैं, वो भी जो इतनी हार्ड बोन्स होती हैं, जब उसको हाई टेम्परेचर पे कुक करोगे तो वो भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन ये एनिमल्स विदाउट कुकिंग ऐसे रा खा रहे हैं इस फ्लैश को, तो डैट इज द रीज़न उनके जो टीथ होंगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे और शार्प होंगे, पॉइंटेड होंगे, एंड बैक के टीथ हैं कैसे, ब्रॉड और फ्लैट हैं, ठीक है, चबाने के लिए ब्रॉड और फ्लैट हैं, जिससे वो अच्छे से च्यू कर सकें, चबा सकें, ठीक है। और देयर जा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो उनका जबड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि इतने एक तो रा फ्लैश खानी है, ऊपर से इतनी हड्डियां होती हैं, उनको भी ब्रेक करना है, तो उनके खुद के जा स्ट्रॉन्ग होंगे तभी तो वो बोन्स को ब्रेक कर सकेंगे। इज इट क्लियर? सो देयर जा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट इज गिवन अबाउट द
snake. Okay, now next is given about snake. तो स्नेक्स में क्या बेटा, स्नेक डू नॉट हैव चूइंग टीथ. जैसे चूइंग टीथ मतलब क्या होती है, जिससे हम हमारे जो बैक वाले दांत होते हैं जिससे हम खाने को बहुत अच्छे से क्या करते हैं, चबाते हैं. तो स्नेक्स की चूइंग टीथ नहीं होती है, वो डायरेक्ट खाने को क्या करते जाते हैं, सॉलो कर जाते हैं. ठीक है, फिर उनको 3 to 5 days लग जाता है उस फूड को डाइजेस्ट करने पे. एंड टाइमिंग ऑफ डाइजेशन ऑफ द फूड इज आल्सो डिपेंड अपॉन हाउ कि टाइमिंग इस पे भी डिपेंड करता है कि स्नेक की बॉडी कितनी वार्म है. जितना उनकी बॉडी ज़्यादा वार्म होगी, खाना उनका उतनी जल्दी डाइजेस्ट होगा. ठीक है, सो स्नेक डू नॉट हैव चूइंग टीथ. चबाने के दांत उनके नहीं होते हैं. दे सॉलो द फूड विच दे ईट एंड डाइजेशन ऑफ दैट फूड डिपेंड अपॉन दैट स्नेक की बॉडी जो है वो कितनी वार्म है. जितनी ज़्यादा वार्म उसकी बॉडी होगी, उसका फूड उतनी जल्दी क्या होता है, डाइजेस्ट होता है. इज इट क्लियर? तो स्नेक्स डू नॉट हैव चूइंग टीथ. स्नेक्स डू नॉट हैव chewing teeth. Is it clear? Snakes do not have chewing teeth. They just स्नेक डू नॉट हैव च्यूइंग टीथ. और वो अपने फूड को क्या कर जाते हैं, पूरे फूड को सॉलो कर जाते हैं. ठीक है, डायरेक्ट. जैसे हमारे पास टीथ है, पहले माउथ में फूड के स्मॉल 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 पीसेस करते हैं एंड आफ्टर दैट वी सॉलो इट एंड फ्रॉम द फूड पाइप इट इंटर इनसाइड अवर स्टमक वेयर द प्रोसेस ऑफ फर्दर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस. जैसे आपके मुंह में माउथ में खाना आता है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, सो स्नेक का मैंने आपको बता दिया. स्नेक डू नॉट हैव चूइंग टीथ. दे सॉलो द फूड एंड हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय द स्नेक टू डाइजेस्ट दैट फूड, इट डिपेंड्स दैट हाउ मच द बॉडी ऑफ द स्नेक इज वार्म. ठीक है, अगर स्नेक की बॉडी ज़्यादा वार्म है तो फूड जल्दी डाइजेस्ट होगा. ठीक है, तो इन दिस मैनर स्नेक डाइजेस्ट देयर फूड. अब नाउ इट इज गिवन अबाउट इंसेक्ट्स. अब ये छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं, हाउ दे टेक देयर फूड. ओके, हाउ इंसेक्ट्स टेक देयर फूड. नाउ सी स्टूडेंट, इंसेक्ट्स हैव ए लॉन्ग थिन ट्यूब. ठीक है, इंसेक्ट्स के लॉन्ग थिन ट्यूब होती है इंसेक्ट्स की. ठीक है, जिससे वो अपने फूड को सक करते हैं. ठीक है, सक द फूड इनटू देयर माउथ. ओके, सो इंसेक्ट आप लोग जूसेस पीते रहते हो. ठीक है, अमूल की लस्सी आती है या आप लोग फ्रूटी पीते हो, तो विद दैट यू गेट वन प्लास्टिक पाइप. ठीक है, जिसको हम लोग स्ट्रॉ बोलते हैं. एक प्लास्टिक की पाइप हमें मिलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉ बोलते हैं. ठीक है, सो उससे हम उस लिक्विड को अपने माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर लेके जाते हैं. ठीक है, सो इन द सेम मैनर इंसेक्ट्स की भी एक थिन ट्यूब होती है. ठीक है, जिससे वो अपने फूड को सक करते हैं. इज इट क्लियर? इन द सेम मैनर एज यू ड्रिंक फ्रूटी एंड अमूल लस्सी विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रॉ. सो इंसेक्ट्स में हो गया, इंसेक्ट्स हैव थिन ट्यूब. इंसेक्ट्स हैव ए लॉन्ग
thin insects have a long thin tube attached. ये ट्यूब किससे रहती है? उनके माउथ से attached to their mouth. Attached to their mouth. And what role play by this tube? So this tube acts as a straw to suck the food. ठीक है, तो अब इंसेक्ट्स का क्या हो गया? इंसेक्ट्स का हो गया, इंसेक्ट्स हैव ए लॉन्ग थिन ट्यूब अटैच्ड टू देयर माउथ. ठीक है, इंसेक्ट्स हैव लॉन्ग थिन ट्यूब अटैच्ड टू देयर माउथ एंड दिस ट्यूब एक्ट एज ए स्ट्रा टू सक द फूड इनटू देयर माउथ. ठीक है, नाउ and it is also shown in the picture. You can see this is a mosquito. Okay, and in another picture it is the picture of a butterfly, how they suck nectar from the flower. ठीक है, देखो बेटा, जितने भी फ्लावर्स होते हैं उसमें नेक्टर होता है, और नेक्टर क्या होता है? इनका फूड होता है. जैसे आपने देखा होगा फ्लावर्स पे बटरफ्लाई भी देखते होगे आप, फ्लावर्स पे बीज भी देखते होगे, मधुमक्खियाँ, और स्मॉल बर्ड्स भी होते हैं, ह्यूमिंग बर्ड्स. सो वाई दे गो टू द फ्लावर? बिकॉज दे गो फॉर देयर फूड. ठीक है, जो पेटल्स होते हैं ना, पेटल के बेस पे नेक्टर होता है, तो उस नेक्टर को सक करने के लिए ये जाते हैं फ्लावर के पास. इज इट क्लियर? सो मॉस्किटो जो मच्छर हमें काटता है तो उसके दांत नहीं होते हैं मच्छर के, यही थिन ट्यूब होती है. ठीक है, सो फ्रॉम दिस ट्यूब इट सक द ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी. ठीक है, फ्रॉम दिस थिन ट्यूब इट सक द ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी. Next is given about elephant. How elephant eat the food? Now how elephant eat the food? आपने देखा होगा कि एलिफेंट की एक बहुत बड़ी क्या होती है? ट्रंक होती है. विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रंक इट ब्रेक द branches, and in this manner with the help of the trunk he take the food to their mouth. ठीक है, जो भी आपने एलिफेंट को खाना खाते कभी देखा होगा एलिफेंट को, तो ये देखो एलिफेंट क्या है? लैंड की बात करते हैं अगर हम. ठीक है, लैंड लिविंग एनिमल में सबसे बड़ा एनिमल एलिफेंट है. ठीक है, लैंड लिविंग एनिमल्स में सबसे बड़ा एनिमल्स कौन है बेटा? एलिफेंट है. ठीक है, सो अब एलिफेंट की इतनी ज़्यादा हाइट है, तो अब उसको वो छोटे छोटे, अगर उसकी माउथ देखो, एलिफेंट को ट्रंक क्यों है, जिसको हिंदी में आप सूंड बोलते हो. ठीक है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है. एलिफेंट की क्या हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वो कैसे प्लांट्स खाएगा, फ्रूट्स कैसे खाएगा? उसकी तो माउथ भी तो बहुत ऊंची होगी, क्योंकि उसकी हाइट ज़्यादा है ना एलिफेंट की. एलिफेंट की इतनी ज़्यादा हाइट है, और एलिफेंट का वेट भी बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, एलिफेंट की हाइट भी बहुत ऊंची होती है, उसका वेट भी बहुत ज़्यादा होता है. तो हाउ दिस इज पॉसिबल फॉर हिम दैट इट ईट द लीव्स ऑफ द प्लांट? तो ये उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है.
क्योंकि उसका वेट इतना ज़्यादा होता है, अगर वो किसी ट्री को या किसी को टच करने की कोशिश करेगा तो उसका इतना ज़्यादा वेट है कि ट्री भी ब्रेक कर जाएगी। तो दैट इज़ द रीज़न हाउ, और हाइट उसकी ज़्यादा होने से उसकी माउथ भी बहुत ऊंची है, तो हाउ ही विल ईट द फूड, दैट इज द रीज़न you have observed that elephant have trunk, and with the help of this trunk he breaks the branches, ठीक है, and then he take that food to his mouth. So with the help of a trunk he eat the food. Is it clear? ठीक है. So the trunk of the elephant, what is the role of a trunk? The trunk of an elephant helps, okay, the trunk of the elephant helps it to break off branches and leaves, help it to break off branches and leaves. ओके, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसकी हाइट भी बहुत ज्यादा, हाइट ज्यादा है तो उसकी माउथ भी, तो माउथ भी तो उसकी ऊंची होगी बेटा, हाइट इस एनिमल की इतनी ज्यादा है, तो अब वो कैसे लीव्स खाएगा, ठीक है. सो विद द हेल्प ऑफ द ट्रंक ही ब्रेक द ब्रांचेस एंड लीव्स एंड पुश देम इनटू इट्स माउथ, ठीक है, एंड पुश देम इनटू इट्स माउथ. नेक्स्ट आपने देखा होगा, ऑब्जर्व कभी किया होगा, डॉग्स और कैट. देखो, हम वाटर पीते हैं या दूसरे एनिमल्स भी हैं, दे ड्रिंक वाटर, ठीक है, हम लोग ग्लास में वाटर लेते हैं एंड वी ड्रिंक इट, ओके, क्योंकि हम लोग टंग से सलाइवा जो कि हमारे माउथ में होता है, ठीक है, माउथ में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ये सैलिवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सलाइवा, ओके. तो माउथ से हम लोग सलाइवा को फूड के संग मिक्स करते हैं, ठीक है, फूड के संग हम सलाइवा को मिक्स करते हैं, तब हम लोग अपनी टंग की यूज करते हैं, ठीक है, देन एट दैट टाइम वी यूज द टंग, तब हम लोग टंग यूज करते हैं. बट इफ यू ऑब्जर्व डॉग एंड कैट, what is the use of tongue, okay, if you observe dog and cat to lap up water and milk, ठीक है, अगर आप डॉग और कैट को आप देखोगे, हाउ दे ड्रिंक वाटर और हाउ दे ड्रिंक द मिल्क, तो वो लैप करते हैं, वो अपने जीभ से चाट चाट के वाटर भी पीते हैं और मिल्क भी, ठीक है, वो अपने टंग से वाटर और मिल्क को चाट चाट के पीते हैं, ठीक है. सो ये हो गया. नेक्स्ट, डिड यू नो इट इज गिवन ए फ्रॉग हैज ए लॉन्ग स्टिकी टंग, ठीक है, फॉर कैचिंग इट्स प्री. व्हेन द फ्रॉग टेक आउट इज टंग, तो जो इंसेक्ट्स हैं छोटे वो खाता है ये सब, तो वो उसके टंग में एकदम से चिपक जाते हैं, ठीक है. दैट इज द रीजन इट इज गिवन ए फ्रॉग हैज ए लॉन्ग स्टिकी टंग फॉर कैचिंग इट प्री. इज इट क्लियर? So now let's do little recapitulation. What are the things I explained you? Firstly, I explained you about the carnivorous animals. They have very sharp pointed teeth to tear the flesh, and their back teeth is also very broad, and their jaws are very strong. जो उनके जबड़े होते हैं वो बहुत strong होते हैं. After that, फिर I explained you about the snake. Snake do not have chewing teeth, so they swallow the food, and the digestion of the food depends how warm the body of a snake. Is it clear? Next, I tell you insects, how insects suck the food. So they have a thin long tube attached to their mouth. So with this thin tube, they suck the blood
ओके, क्योंकि मॉस्किटो काटता है तो देखो आपको वो क्या करता है, ये जो लॉन्ग थिन ट्यूब है इसी से ब्लड को सक करता है इनटू देयर माउथ, ठीक है। उसके बाद अनदर हार्बीवोरस एनिमल्स, किसकी बात हम लोग ने की, एलिफेंट की। सो हाउ एलिफेंट with the help of the trunk they break the branches and leaf and take the food to their mouth. Okay, thank you student.